started with development leading to quantum or wave mechanical model of an atom. Now see, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि कल मैंने आपको बोर की शॉर्टकमिंग बताई थी. बोर in the discovery, whatever the discovery made by Bohr, there were various shortcomings leading to the Bohr's model of an atom. तो अब बोर का मॉडल फेल हो गया तो नए एफर्ट्स किए गए and these new efforts were created as such so that a new model of an atom could be created. And the new model of an atom, उसके लिए हमारे पास में दो कंसेप्ट्स आए. कौन कौन से? पहला कंसेप्ट था डी ब्रोगलीज कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. First was de Broglie's concept of dual nature of matter, and the second concept was Heisenberg uncertainty principle. The second concept was Heisenberg uncertainty principle. And ये दोनों concept कौन कौन से मैंने जो बताया, de Broglie's dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle. Both these concepts, they gave rise to a new branch of science, and that new branch of science, it is known as wave mechanics or quantum mechanics. What is this new branch of science? It tells us about the wave mechanics or what you rightly call as the quantum mechanics. Clear? इसीलिए ये जो नया मॉडल ऑफ एन एटम सामने आया है, it is known as quantum mechanical model of an atom or wave mechanical model of an atom. तो चलिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं. लुईस डी ब्रोगली, उन्होंने एक आइडिया दिया. वी आर स्टडीइंग अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डी ब्रोगलीज इक्वेशन. एंड व्हाट डज दिस डी ब्रोगलीज इक्वेशन टेल्स अस? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. लुईस डी ब्रोगली ने क्या कहा? उन्होंने कहा, उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जैसे फोटोन है, फोटोन इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द क्वांटम और अ लाइट रे. तो जैसे फोटोन है वैसे ही दुनिया के जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, अरे ये मार्कर जो है ये भी एक मटेरियल पार्टिकल है. ये अगर मेरे पास में मैं ये इसको बोलूं तो ये भी एक मटेरियल पार्टिकल है. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कहीं ना कहीं मटेरियल पार्टिकल है. बट ऑल द मटेरियल पार्टिकल, they are divided into two categories. दुनिया में जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. कौन कौन से? मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक. क्योंकि ये पार्टिकल का बना हुआ है और मैं इसको अपनी आंख से देख सकता हूँ, तो दिस इज मैक्रोस्कोपिक. क्लियर? लेकिन इसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी हैं. क्लियर? तो उसके बेसिस पे डी ब्रोगली ने बताया कि मैटर का ड्यूअल कैरेक्टर है. He said that matter has dual character. Is this clear? Right? And he said that all material particles, they possess dual charge. All the material particles, they possess dual charge. And the wave associated with a particle, what I am saying, the wave associated with a particle, the wave associated with a particle, it is called as de Broglie's wave. What it is called as? It is called as de Broglie's wave. I repeat, the wave associated with a particle, it is commonly called as de Broglie's wave. अब मैं आपको de Broglie का समीकरण या de Broglie का रिलेशन बताऊंगा. Let us try to understand the relation. What you call as de Broglie's equation हम किसको बोलते हैं, या de Broglie's relation किसको बोलते हैं. ठीक है? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि the wave associated with a particle, मतलब ये कोशिश करना प्रूफ करने की कि that a material particle has dual character. What are these dual character? एक तो वो wave की तरह शो कर रहा है और दूसरा वो किसकी तरह शो कर रहा है? पार्टिकल की तरह. It is showing either as a wave or it is showing either as a particle. Am I right or not? तो इसी चीज को पहले देखते हैं. सपोज हम अज्यूम करते हैं, लेट अस ट्राई टू अज्यूम इन केस ऑफ फोटोन, अगर हमारा मटेरियल पार्टिकल फोटोन है, इन केस ऑफ फोटोन,
if in case of a photon it is assumed, मान लो मेरे पास में फोटोन है और मैं ये मान के चलता हूँ कि फोटोन का अपना एक वेव कैरेक्टर, what photon has Wave character. yes, that photon has wave character. Clear? तो उसकी एनर्जी, its energy will be given by what formula? E is equal to h nu. पीछे पढ़ा है हमने, what is E is equal to h nu? Planck's quantum theory. इसको पढ़ा है हमने. तो this is commonly called as Planck's quantum theory. According to Planck's quantum theory, E is equal to h nu. Planck's quantum theory के हिसाब से अगर आप देखोगे फोटोन में अगर वेव कैरेक्टर है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? E is equal to h nu. Planck's quantum theory. अब एक बात तो सीधी है कि उसमें Planck's quantum theory कब हम ये assume करते हैं? If we consider that material particle as photon. If we consider that material particle as photon, और तब उस material particle में क्या हो जाएगा? It will have wave character. If that particle is having wave character, if that photon is having wave character, its energy is recognized by E is equal to h nu, and that is commonly called as Planck's quantum theory. चलिए पहला इक्वेशन आपको मिल गया और यहाँ पे न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर यही फोटोन, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी फोटोन में मान लीजिए पार्टिकल कैरेक्टर आ गया, अगर यही फोटोन में मान लीजिए क्या आ गया? If this photon is having particle character, if this photon is having particle character, तो जब फोटोन में पार्टिकल कैरेक्टर आ गया तो उसकी एनर्जी को हम कैसे लेंगे? E is equal to mc square. It is taken as E is equal to mc square, and this E is equal to mc square is known as Einstein mass energy relationship. So what it is known as? Einstein mass energy relationship. Am I right? तो हमारे पास में दो कैरेक्टर आए। अगर फोटोन में वेव कैरेक्टर है तो उसकी एनर्जी क्या हुई? E is equal to h nu. अगर फोटोन में मान लीजिए पार्टिकल कैरेक्टर है तो it is E is equal to mc square. M is the mass of the photon and c is the velocity of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1, और ये वाला इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2, अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देता हूं तो व्हाट आई एम गेटिंग इज h nu is equal to mc square, है ना? अगर मैंने E is equal to h nu और E is equal to mc square को कंबाइन कर दिया, E दोनों में कॉमन था, तो फाइनली E is equal to what? h nu is equal to mc square. ठीक है? अब इसके बाद आगे चलते हैं. लेट अस सी, अगर मैंने दोनों को कर दिया तो कंबाइन किया तो h nu is equal to mc square आ रहा है. बट वी ऑल नो, अभी हमने कल की क्लास में पढ़ा था that nu frequency is equal to c upon lambda. कल पढ़ा था ना कि nu किसकी वैल्यू होती है? nu is equal to c upon lambda. What is this c? Velocity of light, and lambda is the wavelength, and this nu is the frequency. तो nu is equal to c upon lambda. इसकी वैल्यू, nu की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूं तो क्या हो जाएगा? h c upon lambda is equal to mc square. राइट? मैंने ये nu की वैल्यू यहाँ डाल दी तो h c upon lambda is equal to mc square. ये lambda बाहर निकाल दूं तो क्या होगा? lambda is equal to h upon mc. lambda is equal to h upon mc. क्लियर? डी ब्रोगली ने जब इसके बारे में बताया तो he said कि this can be applicable to any material particle. Is this clear? और material particle में applicable होगा तो हमने ये c को हटा दिया और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? v velocity. क्या डाल दिया? velocity. So therefore lambda is equal to h upon mv, and mv is what? Mass into velocity. Clear? And what is this mass into velocity? Momentum. It is equal to momentum. तो मोमेंटम का सिंबल है p, तो lambda is equal to h upon p. This relationship is known as de Broglie's equation. Lambda is equal to h upon p. This is known as de Broglie's equation. mv is equal to what?
mv is equal to mass into velocity is equal to p, that is called as momentum. तो ये वैल्यू मैंने यहाँ, सिंपल था, इजी था, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक है। तो व्हाट यू विल फाइंड, एक और चीज ये इक्वेशन और भी एक बात बताता है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। जो डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है वो ये भी बताता है लैम्डा is inversely proportional, de Broglie's wavelength of a particle is inversely proportional to its momentum. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, lambda is inversely proportional to its what you rightly call as momentum. Lambda is de Broglie's wavelength is inversely proportional to its momentum. Is this clear? है ना? Right? तो जो डी ब्रोगली का इक्वेशन है वो हमको क्या बताया, दो बातें बताई। It signifies that the matter shows both the relationship, what? Wave as well as a particle. Matter it shows both the relationship. कौन सा wave और particle. And that is known as de Broglie's equation. I hope समझ में आया होगा. Thank you. Just now we have understood about de Broglie's wave equation. But honestly speaking and practically speaking, de Broglie's wave equation उसका मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से कहीं कोई लेना देना नहीं है। उसका जो भी लेना देना है, इट इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जैसे मैं ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, अगर मेरे पास में एक बॉल है जो 0.1 kg की, कितनी है बॉल? 0.1, एंड इफ इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन h अपॉन mv, तो अगर मैंने h की वैल्यू इतनी डाली, दैट इज 6.626 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, अपॉन मास कितना था 0.1 kg और स्पीड कितनी थी 60 मीटर पर सेकंड, और उसकी वैल्यू आफ्टर इक्वेशन कितनी आ रही है 10⁻34 मीटर। एंड दिस वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी वेरी feebly small. This wavelength of light is feebly small. तो we cannot imagine कि वो किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से टकराएगा और उसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो that is why I said both of these particles, de Broglie's wave equation and Heisenberg uncertainty principle, इनका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से ही लेना देना है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से इनका कोई लेना देना नहीं है। Finally we talk about one more thing, and that is commonly called as, जो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, we are now moving with Heisenberg uncertainty principle. अब जैसे मैं ये जो लाइन पढ़ा रहा हूँ या ये जो भी पढ़ाता रहूँगा, पूरे कंसंट्रेशन के आप समझिएगा। आई प्रॉमिस कि 10 साल बाद भी कोई आपसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन पूछे तो आप उसको ऐसे ही बता दोगे। तो कंसंट्रेट करिएगा, काम आएगा आपके। बट बिफोर दैट आई नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपको मैं इसके बारे में और एक बात बता दूं, इसी साइंटिस्ट को, हाइजेनबर्ग को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका ने जिम्मेदारी दी थी कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, और उसने न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला भगवद गीता से निकाला। तो उसी के बारे में हम बोल रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, दुनिया में हर दो चीज एक के पीछे घूम रही है। वर्कर अपने मालिक के पीछे घूम रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के पीछे घूम रही है, सूर्य का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, क्लियर। तो दुनिया में हर चीज एक के पीछे एक गोल पाथ में, राउंड पाथ में घूम रही है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑल सच मूविंग ऑब्जेक्ट्स which move along a definite path, all such objects which move along a definite path, अगर आप रायपुर से राजनांदगांव जा रहे हो या भिलाई जा रहे हो तो आप एक सीधे रास्ते में जाओ, आप ऐसा ऐसा करके नहीं चला सकते, कार चला सकते हो। All such objects which move along a definite path, they are called as trajectories. क्या बोलते हैं उसको?
Yes, which move along a definite path, they are commonly called as trajectories. तो हर चीज एक दूसरे के पीछे एक डेफिनेट पाथ में घूम रही है, और जो डेफिनेट पाथ में अगर मैं कार लेकर के निकल रहा हूँ, एज यू कैन सी मैं कार लेके निकल रहा हूँ, मैं रायपुर से कहाँ जा रहा हूँ, भिलाई, ठीक है। तो मेरे कार का दोनों चीजें, मेरे कार का पाथ और मेरे कार की वेलोसिटी का पता लगाया जा सकता है, बिकॉज आई एम मूविंग इन अ डेफिनेट पाथ। तो मैं उसका मोमेंटम, मैं उसकी वेलोसिटी, मैं उसका पाथ, उसका रास्ता सब पता लगा सकता हूँ, पोजीशन लगा सकता हूँ। क्लियर है ना? लेकिन इस तरह का एक्यूरेट मेजरमेंट जिसमें आप, मैं ये कार है एंड दिस कार इज अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, तो मैं इसका पता लगा सकता हूँ, आई कैन फाइंड आउट, उसका पोजीशन भी पता लगा सकता हूँ और उसकी वेलोसिटी। बट दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। When I'm using the word subatomic particles, I'm talking about proton, electron and neutron. This is practically not possible for subatomic particles. ये subatomic particles के लिए possible नहीं। Is this clear? Accurate measurement, ठीक है? तो for subatomic particles, the definite path or the trajectory for subatomic particles, मतलब electron, proton and neutron, it is that theory is being ruled out. It is overruled. अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। वर्नर हाइजेनबर्ग ने एक फिजिसिस्ट थे और उन्होंने प्रिंसिपल बताया कि there exists certain uncertainties and we cannot measure the position as well as momentum of the subatomic particles simultaneously or in accuracy. If you want to measure the position or momentum of any particle, एक को अगर आप मेजर करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, लेस एक्यूरेट हो जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का आप उसका ना एग्जैक्टली ये पता नहीं लगा सकते। अगर आप पोजीशन को नापोगे तो उसकी वेलोसिटी, जो मोमेंटम है उसका, वो लेस एक्यूरेट हो जाएगा, और अगर आप मोमेंटम को मेजर करोगे तो उसका पोजीशन जो है वो लेस एक्यूरेट। तो इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाट डज हाइजेनबर्ग सेज, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एक के साथ एक साइमल्टेनियसली आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर सकते स्मॉल पार्टिकल का विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। अगर आप कोशिश करोगे, इफ एन अटेम्प्ट इज मेड to measure any one of these two quantities, एकदम हायर एक्यूरेसी के साथ अगर आप मेजर करोगे इनमें से किसी को भी, तो एक तो ठीक आएगा लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, लेस एक्यूरेट हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज नोन एज डेल एक्स। प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन है ना, स्थिति में अनिश्चितता को हम डेल एक्स लेते हैं, तो इट इज डेल एक्स। एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम है ना, संवेग में जो अनिश्चितता होती है उसको हम लोग लेते हैं, कॉमनली ले टेकन एज, व्हाट यू टेक इट एज डेल पी, व्हाट इट इज टेकन एज डेल पी। क्लियर? तो ये चीज याद रखेंगे, यू मस्ट रिमेंबर, अगर आप इसको ध्यान से रखना चाहते हैं तो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये किसके बराबर होता है, दिस वैल्यू इज either equal to or greater than h upon 4 pi. Its value is equal to or greater than h upon 4 pi. तो ये इक्वेशन ऐसा आ जाएगा, कैसा आएगा आपका इक्वेशन, del x into del p है ना, either equal to or greater than h upon 4 pi. This is known as Heisenberg uncertainty principle, h upon 4 pi. ठीक है, इज दिस क्लियर, राइट? अब मैं आपको हाइजेनबर्ग, जैसे मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। इस एग्जांपल से आपको हाइजेनबर्ग हमेशा के लिए दिमाग में आपके छप जाएगा। देखिए कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये नोट कर लिया सबने? मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूं, अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपके दिमाग में, जैसे मैंने आपको बोला, परमानेंटली छप जाएगा। ठीक है,
मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से ऐसे जाना है, इसको कहां जाना है? एज यू कैन सी दिस इज द एक्सपेक्टेड पाथ। व्हाट इज दिस? एक्सपेक्टेड पाथ। ये देखो, इधर देखो, पहले ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जा रहा है और उसको इस रास्ते से जाना है, नहीं समझे? ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और उसको इस रास्ते में जाना है। इस इलेक्ट्रॉन से अचानक मान लो कोई इंसिडेंट फोटोन आकर के टकरा गया। क्या हुआ? इंसिडेंट फोटोन इससे आकर के टकराया तो ये इलेक्ट्रॉन अब इस रास्ते से नहीं जा पाया। उस इलेक्ट्रॉन ने एक नया पाथ एक्वायर कर लिया और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई। क्लियर? उसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो यू विल फाइंड, अगर आप इसमें नोटिस करेंगे कि जब ये इससे आकर के इंसिडेंट लाइट रे से आकर के टकराया तो ये फोटोन तो रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन ये बेचारा इलेक्ट्रॉन जो था वो अपनी दिशा, उसका जो पाथ था और उसकी जो वेलोसिटी थी वो दोनों चेंज हो गए, है ना? इसको मैं कुछ इस तरीके से आपको करके दिखाता हूं। कैन यू होल्ड दिस? मेरे पास मान लीजिए, अगर आप लोग चाहें तो आकर के देख सकते हैं, यू कैन शो इट हियर, ठीक है? माही आप इधर से ये पेन को स्ट्राइक करना है, मैं इधर से करता हूँ, रुकना अभी, जब बताऊंगा तब, ठीक है? रेडी, 1 2 3, फिर से उठाइए, एक बार फिर से करते हैं, आइए शुरू हो जाइए। रेडी, 1 2, थोड़ा जोर से, 1 2 3। एम आई राइट? तो ये 2 पेन थे मेरे पास में, ये 2 पेन थे। जब इस पेन से, ये पेन इसको जाना था इधर, देखो ये जा रहा है, और मैंने ये पेन इधर जा रहा है, मैं तेजी से एक पेन ला दिया, तो क्या हुआ? इस पेन का पोजीशन और मोमेंटम दोनों चेंज हो गया। लेकिन ये कहाँ जाके गिरेगा? यहां से इधर से मारिए, मैं भी मार रहा हूं, हम दोनों एक ही टाइम पे एक साथ मार रहे हैं, 1 2 3। क्लियर? लेकिन एग्जैक्टली ये कोई नहीं बता पाया। ये भी नहीं सोची थी कि ये पेन नीचे गिर जाएगा, मैं भी नहीं सोचा था कि ये पेन नीचे गिर जाएगा। तो दोनों चीजें इसकी आप एक साथ मेजर नहीं कर सकते, ना पोजीशन ना ही इसका मोमेंटम। अगर एक को मेजर करोगे तो दूसरा लेस एक्यूरेट हो जाएगा। हम लोगों ने किस पे? मोमेंटम पे कॉन्सेंट्रेट किया, कौन कितने जोर से मार रहा है, ठीक है? लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि ये नीचे आकर के गिर जाएगा। तो एक साथ दोनों चीजें आप मेजर नहीं कर सकते। That is what being told by Heisenberg uncertainty principle। और जैसा मैंने पहले भी बताया, एक लाइन और बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, that you cannot measure, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, significance Heisenberg uncertainty principle का क्या है? Heisenberg uncertainty principle is applicable again for microscopic particle, not for macroscopic particle। For example, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है? क्लियर? ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना है, ठीक है, राइट? जैसे इस इलेक्ट्रॉन से ये लाइट रे आकर के टकरा रही है, तो इस इलेक्ट्रॉन का पाथ भी चेंज हो रहा है और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। मैं इसी, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, दिखाई देता है हमको आँख से, मैं इसमें लाइट को ला करके टकरा रहा हूँ। देखिए जो ऊपर ट्यूब लाइट है वो मेरे मार्कर से आकर के टकरा रही है, क्या इसका पोजीशन या मोमेंटम चेंज हो रहा है? कुछ चेंज हो रहा है? Hence proved that Heisenberg uncertainty principle is applicable only for microscopic particle, not for macroscopic particle. Thank you.